Hello students, is Matter Around Us Pure lecture 5. In lecture 4 we have studied about the classification of colloids. Now in lecture 5 we will study about the concentration of a solution. How to find the concentration of a solution. Now we know that our solution is made up of mainly these two components, that is solute and solvent. These are the two major components of a solution. Now, what is concentration? We will find out how much amount of solute is present in a given quantity of a solution. That determine the concentration of a solution. कि कितना amount of solute आपके एक solution में present है, वो आपको उसका concentration बताएगा. Now, there are different methods to find out the concentration of a solution. But the common method that we will study is the percentage method. Okay, in higher standard you will study more different methods like molarity, molality, mole fraction, normality. These are the various methods to find out the concentration of solution. But for now in the 9th standard we will only study the percentage method. So let us see what do you mean by a solution. Concentration. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity of a solution. उसको हम क्या बोलते हैं? Concentration. अब amount of solute एक solution में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ठीक है? If it is present in lesser quantity, then you say that solution as dilute solution. ठीक है? If the amount of solute present in a given solution is in less amount, that is said to be a dilute solution. And if the amount of solute present in the solution is present in more amount or larger quantity, it is known as concentrated solution. Okay, so these are the definitions. The solution having small amount of solute is said to be have lower concentration and it is known as a dilute solution. And the solution having large quantity of solute is said to be have higher concentration and is known as concentrated solution. So as you can see in this figure, can you say me which is the more concentrated solution and which is the more dilute solution? As you can see, the color indication itself says that this solution is concentrated because the amount of solute is present in more quantity. Therefore, it is more dark in color. This is the dilute solution because the amount of solute is present in lesser quantity and the color is light. क्योंकि water की quantity बढ़ गई और solute की quantity कम हो गई. ठीक है? Now, as I said, there is the different methods to find out the concentration of the solution, but the most common method is percentage method. So there are three types of percentage method, mainly mass by mass, volume by volume, and mass by volume. So let us see first one, mass by mass percentage, or you can say they are also known as weight by weight percentage. ठीक है, इसको weight by weight percentage भी बोला जाएगा या फिर mass by mass, मतलब दोनों ग्राम्स या फिर ग्राम्स में. So mass of a solute, what is mass by mass percentage, or you can say concentration of a solution? It is a mass of solute upon mass of solution into 100. Now you know mass of solution is made up of solute and solvent. तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको सोल्यूट नहीं, सोल्यूशन का मास नहीं दिया होगा, बट सॉल्वेंट का दिया होगा और सोल्यूट का दिया होगा, तो क्या आप सोल्यूशन का फाइंड कर सकते हो? यस. So mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. Okay. Now let us see a numerical on the basis of this. A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate the concentration of this solution. इसका concentration आपको calculate करना है. So क्या given क्या है आपको? Given mass of solute. Solute is what? Salt. So what कितने ग्राम दिया है वो आपको? That is given to you 30 ग्राम sugar. ठीक है? और mass of water मतलब solvent है, वो solution नहीं है. Water मतलब solvent. तो उसका कितना ग्राम दिया है आपको? Total 370 ग्राम. मतलब ये given है. ठीक है, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इज 30 ग्राम एंड शुगर को इसमें डिजोल्व किया है पानी, तो ये दोनों कंबाइन करके दैट इज 30 ग्राम ऑफ शुगर और ये कंबाइन करके सॉल्यूशन बना रहे हैं.
तो सोल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, क्या फाइंड करना है? परसेंटेज. सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंटेज. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन mass of solution, I am writing in this form, into 100. अब mass of solute कितना था? 30. mass of solution क्या हो जाएगा? 30 प्लस 370 इंटू 100. ठीक है. सो इसके आगे अगर आप सॉल्व करोगे, सो वॉट यू विल गेट? परसेंटेज यू विल गेट व्हेन यू सॉल्व इट, you will get the percentage as 7.5%. So this is the concentration of the solution. ठीक है. एक और बात बता रही हूँ, सुनो. आपको बोला गया है a solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate the concentration of this solution. तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंटेज. कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन बोला होगा, कभी परसेंटेज पूछा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. दोनों ग्राम्स में दिया है, तो बट ऑब्वियस है कि वो क्या होगा? मास बाय मास. तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 30 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी में उसको डिसॉल्व किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 370. सोल्यूशन नहीं है वो. ठीक है. सो परसेंटेज क्या होता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. सो 30 अपॉन 30 प्लस 370 इंटू 100. तो आपको कितना परसेंटेज मिलेगा? 7.5. ओके. नाउ नोट डाउन दैट that the concentration of solution is defined also as the mass of solute in grams present in 100 gram of solution. तो अगर मैंने पूछा 10% solution, if I am saying 10% solution, so that means 10 gram of common salt is dissolved in your 90 gram of water, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 का होता है. ठीक है. नाउ सेकेंड मेथड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड. पहला क्या था? सॉलिड डिजोल्व इन सॉलिड सोल्यूट था. ठीक है. अब यहाँ पे लिक्विड सोल्यूट है और लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और यू कैन से इसको हम V बाय V परसेंटेज भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. न्यूमेरिकल देखो. A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Again volume of solute is given, volume of solvent given है. solution नहीं बोला है, water में उसको dissolve कर रहे हैं. आपको calculate करना है concentration. So simple numerical given क्या क्या है? volume of solute कितने ग्राम है? 50 ml. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है? दैट इज 150 ml. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना, सो 50 प्लस 150. डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो सॉल्व करके. तो 200 ml मिल गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मुझे क्या फाइंड करना है? कॉन्सेंट्रेशन. तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? सो दैट इज, और यू कैन से परसेंटेज. सो कॉन्सेंट्रेशन of solution is equal to 50, that is the volume of solute, divided by 200 volume of solution into 100. So my answer will be simple, 50 divided by 2, that is 25%. So what is the concentration? It is 25%. I hope this is clear to you. नेक्स्ट थर्ड है मास बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड. सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मास ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पे गिवन है न्यूमेरिकल, देखो क्या है? सोल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन. सो गिवन क्या क्या है लिखो. जस्ट मेक यहाँ पे वाटर की जगह 50 ml ऑफ सोल्यूशन कर देना. ठीक है. वाटर नहीं, 50 ml ऑफ सोल्यूशन.
सो वॉल्यूम परसेंटेज डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन बता रही हूँ अभी कितना 25 डिवाइड बाई 50 इंटू 100. सो सॉल्व करना 5 1 जा 5 5 जा. सो हाउ मच परसेंटेज 50%. ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह वाटर की जगह सोल्यूशन करना, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली गिवन है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मे बी आस्क्ड. नाउ नेक्स्ट इज saturated solution. Now what is a saturated solution? Now when we dissolve a solute in solvent then a solution is formed. हम जब solute को solvent में dissolve कर रहे हैं तो solution आपका बन रहा है. ठीक है, so we can dissolve different amount of solutes. different amount of solutes आप different amount of solvent में dissolve कर सकते हो. ठीक है, so depending upon the amount of solute present in the solution it can be classified into two groups. कि कितने amount of solute आपका solution में present है उसको दो group में classified कर सकते हैं, saturated और unsaturated. So let us see what is a saturated solution. A solution in which no more solute can be dissolved at a temperature is called unsaturated or sorry is called a saturated solution. A solution in which ये अन हटा देना. ठीक है, a solution in which no more solute can be added at a given temperature or dissolved at a particular temperature is called saturated solution. For example, अगर मैंने aqueous salt solution दिया है आपको, मैं उसमें और सॉल्ट डिजोल्व नहीं कर सकती हूँ पर्टिकुलर टेम्परेचर में और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकती, क्योंकि हर एक सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का डिजोल्व होने का एक पर्टिकुलर रेंज होता है. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बोरी आपको शक्कर दिया और 500 ml वाटर दिया और पूरा उसमें वो डिजोल्व हो जाए. नो, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना सब चीज़ का. ठीक है, सो सेम वे व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट अ टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट का. मैं थोड़ा और डाल रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेटेड बन गया, और थोड़ा डाल सकती हूँ तो क्या बन रहा है, सैचुरेटेड. आप कलर डिफरेंस से बता सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं इसमें और कॉपर सल्फेट डालती रहूँगी ना तो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगा. सो दैट मीन्स उसका सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है, उसमें और सॉल्यूट को मैं ऐड नहीं कर सकती. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, अ सोल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, next unsaturated solution. Now what is unsaturated solution? A solution in which more quantity of solute can be dissolved without rising the temperature. मतलब आप और solute उसमें डाल सकते हो without rising temperature, उसको हम क्या बोलते हैं, unsaturated. जैसे example, in an aqueous solution of salt more salt can be dissolved without rising the temperature. तो उस solution को क्या बोलते हैं, unsaturated. बट हर एक सोल्यूशन का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें डालते रह रहे हो. ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब वो सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए आप उसमें और ऐड कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. यू कैन ऐड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट इज लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. ओके, अब एक चीज़ याद रखना कि सैचुरेशन में आप जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें बाद में और सोल्यूशन डाल सकते हो. क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी हीटिंग कैपेसिटी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स at a specified temperature is known as solubility. ठीक है, solubility is somewhat related to saturation only, saturation point also. So the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is called its solubility. हर एक solvent का solute का उसमें ऐड करने का एक particular solubility होता है, सब चीज़ की अलग अलग solubility है. ठीक है, नाउ पे अटेंशन, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. मतलब जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो 32 ग्राम्स कितने में डिजोल्व हो सकता है, 100 ग्राम में एट 20 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 32 ग्राम्स इज एट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सेम वे 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस.
सो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी कि वाटर उसमें कॉमन सॉल्ट का कि 36 ग्राम में कितने डिग्री सेल्सियस में रिजॉल्व कर सकती हूँ 20, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। पहला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यस, जैसे मेरे को नमक, मैंने आपको बोला मुझे पानी में ऐड करना है उसको, ठीक है, सो मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो उसमें आप और नमक डाल सकते हो ना, ठीक है, और प्रेशर की वजह से उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड एज चेंज इन प्रेशर। जैसे वाटर ऑलवेज कंटेन सम अमाउंट्स ऑफ एयर विच कैन बी डिजॉल्व इन इट, सो व्हेन वाटर इज हीटेड द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड सम ऑफ दम डिजॉल्व्ड एयर कम्स आउट फॉर्मिंग टाइनी बबल्स, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो सॉल्युबिलिटी, जैसे मुझे टैबलेट को पानी में डिजॉल्व करना है तो वो डिजॉल्व हो रहा है, बट मैंने अगर गर्म पानी लिया और उसमें टैबलेट डाल दिया तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है ज़्यादा है, तो मोशन क्या होगा ज़्यादा होगा, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो अच्छे से डिजॉल्व हो सकता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी जल्दी होगी, ठीक है। थर्ड, the solubility of gas in liquid usually decreases on increasing the temperature and increases on decreasing the temperature। मतलब गैसेस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, गैसेस को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर रही हूँ तो यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसमें से गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवोपरेट होंगे ना, तो ईजिली डिसॉल्व होगा नहीं। बट अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अच्छे से होगी, ठीक है। And the solubility of gas in liquid increasing on increasing the pressure and decreasing or decreasing the pressure। Best example इसका मैं बता सकती हूँ your cold drinks, your soft drinks। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में इमर्ज करते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो जैसे आप उसको ओपन करते हो तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाए, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बाहर की तरफ खुलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन liquid। So I hope this topic is clear to you. In the next class we will study about the physical and the chemical changes. Thank you.